talking about memory, right? And I think we left off here. So we just terminologies जो है मैं एक दफ़ा repeat कर लेता हूँ. So we do remember that we did talk about hierarchies in memory. और हमने discussion ये की थी कि ये जो different hierarchies हैं ये हमें मुख्तलिफ किस्म के benefits देते हैं. और जो primary benefit था that we talked about was because if you remember memory में हमारे लिए important चीज़ क्या है? Storage capacity at a good speed at a low cost, right? These three things. तो हम लोग and the claim is कि अगर आप multiple levels of memory इस्तेमाल करें जिसके अंदर आप fastest memory छोटे size की close to the processor इस्तेमाल करें और आप उसको आगे move करते जाएं and on to the main memory, so that is going to give you some dividends in speed overall. Average latency आपकी improve होगी and obviously that is a cost effective solution. And main memory जो है in that regard can be theoretically infinitely large. ठीक है, even though we are constrained by obviously physical manifestation of an infinite memory, that's another discussion. But अगर आपके पास अच्छी hierarchy है, then it becomes irrelevant of how large the main memory is insofar ये जो transaction है between the processor and the main memory. वो एक अलग discussion है कि main memory को जो हम large करने की कोशिश करते हैं उसकी physical limitations क्या है, वो एक अलग discussion है altogether. ठीक? तो हमने थोड़ी बात की थी and we did draw how that cache is going, that block of data is going to move around. मैं इसको before I just talk about it in detail, मैं सिर्फ इसको remind कराने के लिए I'm just going to go through these terms. Block क्या है? It's a collection of, it's a fixed size, or maybe variable size by the way. So it's a fixed size block in most cases जिसमें बहुत सारे आप कह सकते हैं और अमूमी तौर पे fixed number of डेटा जो होता है यूनिट्स ऑफ डेटा, फिक्स यूनिट्स ऑफ डेटा इसके अंदर होते हैं. ठीक है, और इसको हम लाइन भी कहते हैं. ठीक, कैश लाइन और कैश ब्लॉक इज द सेम थिंग. एंड द आइडिया इज कि जब भी आप कोई एक मेमोरी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं कमिंग फ्रॉम द प्रोसेसर, तो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली टॉकिंग एक्सेसिंग द मेमोरी डायरेक्टली, आप क्या करते हैं उस पूरे ब्लॉक को उठा के जिसमें वो रहता है, जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसको उठा के ऊपर ले जाते हैं. एंड द आइडिया इज प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी. तो वी जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. So if I'm accessing a memory location a second time, it is possible that that block is already in the cache, or it's possible that the block is not in the cache, right? तो ये हमारे hit and miss थे. ये terminologies I'm just revising them. और हमने कहा था कि हम लोग जो हैं वो अभी granularity की बात हम करेंगे in this lecture. But placement and replacement में फर्क क्या है? Placement ये है, placement का मतलब क्या है? Placement of a block from the main memory into the cache. उसको मैं ज़्यादा अच्छा एक qualifier लगा लेता हूँ. ठीक है? Placement of a block from a lower memory to a higher memory. ठीक? तो the reason why I change my wordings is because अगर हम hierarchy की बात करें, तो maybe L1 is not talking to the main memory, right? So L1 is talking to L2, L2 is talking to L3, L3 is talking to the main memory. Yeah, you may have more levels of cache, right? So placement क्या है कि अगर मैं, if I need some data and invariably that data is going to belong to a block, क्योंकि ये आपको अभी इसको डिस्कस करते हैं, then we'll move forward. देखिए डेटा को मैं पहचानता कैसे हूँ? How do I recognize data? How do I reach data? What is an important element to be able to reach data, to retrieve it or to write? Address. Very good. So address is the most important thing. तो हम लोग क्या करते हैं कि जो address है ना, और address is pretty simple. It's linear, right? You start from 0x, zeros, some form of zeros, and then it can go on to whatever, and it's linear. Yeah, that clear? So what we do is we leverage the addressing scheme in a way कि हम ये determine कर सकें कि ये जो है एड्रेस, जो ये जो लोकेशन है, ये जो डेटा है, ये इस ब्लॉक से बिलोंग करता है या उस ब्लॉक से बिलोंग करता है, और उसके कई तरीके हो सकते हैं. मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ.
लेट्स से कि हमारा ब्लॉक साइज है एक एलिमेंट का, यानी मैं एक वक्त, दिस इज अ यूजलेस कैश, क्योंकि द होल आइडिया ऑफ अ ब्लॉक इज कि आई वांट टू पिक अप मल्टीपल एलिमेंट्स, राइट? बट मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा एक ब्लॉक है जिसमें एक एलिमेंट जाता है, और मैं कहता हूं कि मैं इन ब्लॉक्स को दो सेट्स में डिवाइड करना चाहता हूं, और दो सेट्स में क्या डिवाइड करूंगा, जो इवन एड्रेसेस हैं वो इस सेट ए में बिलोंग करेंगे, जो ऑड एड्रेसेस हैं वो सेट बी में बिलोंग करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? तो बेसिकली मैंने क्या किया कि एग्जिस्टिंग फिनोमेना है विच इज द एड्रेस, right? So I'm using the address as a discriminating function to distinguish between कि क्या ये A में belong करता है, ये में B में belong करता है, right? या अगर मैं इसको थोड़ा ज्यादा बड़ा करूं, मैं ये कहूं कि तमाम वो, let's say maybe I'm you know, हम एक की बात नहीं करते, हम ज्यादा की उठा लेते हैं, ठीक है? लेकिन मैं कहता हूं कि जिसके जो है लीडिंग बिट्स जो हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो हैं, अगर वो ये, सॉरी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स की अगर ये सीक्वेंस होगी तो हम उसको कहेंगे ये इस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। ये सर, अब यू कैन डू इट विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड सो फोर्थ। लेकिन द थिंग इज कि द एड्रेस एग्जिस्ट्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द एड्रेस addressing mechanism was not designed keeping in caches in mind specifically। अगर इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आपका क्विज आज लेता हूँ जैसे, और मैं कहता हूँ कि जी तमाम ऑड रोल नंबर्स वाले, फिर इवन रोल नंबर्स वाले, फिर ऑड रोल नंबर वाले, इवन रोल नंबर वाले बैठे हैं इस सीक्वेंस में, सो it's not a case कि where your roll numbers were assigned to you to facilitate my quiz, but I can use that fact in that quiz, ठीक है ना? तो ये बस ध्यान में रखें। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है, ठीक है? तो मेमोरी जो है हमारी, हमने फिक्स साइज ब्लॉक्स में की हुई है। तो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस इफ आई मे, ठीक है? तो आई हैव अ लार्ज मेमोरी, वेयर इज इट, एक्सक्यूज मी, just give me a second। ठीक, right, so I have a memory, ठीक है? it's a large memory, ठीक? और इस लार्ज मेमोरी के अंदर मैंने कई ब्लॉक्स में इसको डिवाइड कर दिया, और हर ब्लॉक के अंदर जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, ठीक है? तो लेट्स से कि ये मेरे जा रहे हैं ब्लॉक्स, और इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। नाउ ये ब्लॉक्स हैं रादर, ठीक है? एक बात क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास जो मेन मेमोरी में ब्लॉक्स की तादाद है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू कैश, ये क्लियर है? और इसके अंदर हो सकता है कि जी मेरे पास एलिमेंट्स हों, जो कि ये एक एलिमेंट हो, ये दूसरा एलिमेंट हो। एलिमेंट्स में है कि एक मेमोरी लोकेशन, ठीक है? लेट्स से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, तो ये मेरे एक ब्लॉक के अंदर कई मेमोरी लोकेशन होंगी, ठीक है? ये नेबरहुड का प्रिंसिपल जो हमने बात की थी, ठीक है? और हर लोकेशन का एक एड्रेस होगा, ठीक है? So if I am talking about this location, so this location has an address. I hope it's visible. Is it visible to you? ठीक है? So this address is important. So just to give you context, ठीक है? तो ये मेरी मेन मेमोरी है, और मेन मेमोरी के अंदर मेरे डेटा एलिमेंट्स हैं। ना बाय द वे ये जो ब्लॉक्स हैं, बाय द वे ये मेन मेमोरी को नहीं इसका आइडिया किस तरह से ब्लॉक्स हैं। मेन मेमोरी को तो ये पता है कि लेट मी से दिस कि इफ दिस इज माय एड्रेस 1 एंड दिस इज माय एड्रेस 2, एड्रेस 3, 4, 5, 6, 7 एंड मे बी देन माय नेक्स्ट एड्रेस इज दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड द नेक्स्ट एड्रेस इज this and this। तो by virtue of naming we can sort of discriminate between them। बिल्कुल इसी तरह से मैंने आपको कहा कि आपके रोल नंबर तो सीक्वेंस में है, अगर मैं कहता हूं कि मैं डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूं between odds and evens, that could be a function, ठीक है?
तो यहाँ पे एक जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, वेयर आर वी, स्लाइड में, देयर, कि ईच ब्लॉक मैप्स टू अ लोकेशन इन द कैश डिटरमिन्ड बाय द इंडेक्स बिट्स इन द एड्रेस, ठीक है। तो ये देख लें कि एक दिस इज एन आइडिया, ठीक, एंड बेसिकली दिस आइडिया इज कि आई कैन यूज द एड्रेस इटसेल्फ टू सॉर्ट ऑफ डिटरमिन। तो मैंने क्या किया कि मैं कुछ बिट्स जो हूं ना इसके इस्तेमाल करता हूं ये डिटरमिन करने के लिए कि मेरा ब्लॉक जो है वो किस सेट से बिलोंग करेगा, ठीक। और उसके बाद मैं मजीद बिट्स इस्तेमाल कर सकता हूं एज एन ऑफसेट, ठीक है। तो ये देख लें कि कैश में एक्सेस में क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा कि द इंडेक्स, you put the index into the tag, and data stores with index bits. Now these index bits are coming from the address. अब हम ये डिटरमिन करेंगे कि ये वाले कौन से होते हैं, ठीक है। that will be determined कि जी वो which ones those are. उसके बाद by the way tag store याद है आपको, we did talk about tag store. Can anybody remind me what a tag store is? जिन्होंने लास्ट रिवीजन की है, टैग स्टोर क्या था जी, बताएं बेटा। हाँ, हमारे पास कुछ रजिस्टर्स हैं इन जो हमारी कैश मैनेजमेंट है, हमें उसके लिए कुछ डेटा मेमोरी चाहिए। और वो मेमोरी क्यों चाहिए, क्योंकि हमने इस तरह का डेटा स्टोर करना है। सो द इंफॉर्मेशन दैट दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इज स्टोर्ड इन द कैश, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास कहीं होनी चाहिए ना। मैं दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूं कि हमारी कैश अभी, बाय द वे, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन गोइंग फॉरवर्ड टुडेज लेक्चर एंड द नेक्स्ट वन, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल कैश सिनेरियो, ठीक है। हम एक कैश की बात करेंगे, तो लेट देयर बी नो कंफ्यूजन अबाउट मल्टीपल कैशेस, राइट। सो वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोसेसर, एक सिंगुलर कैश एंड द मेन मेमोरी, ठीक। और मेन मेमोरी बहुत बड़ी है, कैश जो है वो छोटी है। तो बेसिकली मैंने, क्योंकि मेरे पास कैश बहुत छोटी है, तो मुझे कोई ना कोई स्कीम चाहिए कि मैं कहूंगा कि मैं किस किस ब्लॉक को करूंगा। तो एक तो इसमें कई तरीके हो सकते हैं, इसके कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं ये कहूं कि कोई भी ब्लॉक कहीं भी जा सकता है इन द कैश, एंड दैट इज वन वे टू डू इट, राइट। बट देन माय मैनेजमेंट ओवरहेड इज गोइंग टू बी मच हायर, because I say any block can go to any cache, any location in the cache, right? Well, just to give you an idea, going back to this thing, कि मेरी ये कैश है और इस कैश के अंदर मेरे पास सिर्फ 4 ब्लॉक्स आ सकते हैं, let's say, so I can just accommodate 4 blocks in it, right? और मैं कहता हूँ भाई जिसकी भी जरूरत होगी, any block can go anywhere. So I will have a larger management overhead. So let me just give you an idea. Example ले लेते हैं. Let's say कि आप पूरी यूनिवर्सिटी ने आज रजिस्टर करना है किसी चीज के लिए, पूरी यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। और हम 20-25 काउंटर्स खोल देते हैं और हम ये कहते हैं कि anybody can go to any counter to get that thing done, right? Whatever. So that would be a scenario where, लेकिन स्टूडेंट्स कितने हैं? मैं फर्ज करें, लेट्स से कि मैं कहता हूँ 26 हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ 26 काउंटर्स हैं। स्टूडेंट्स कितने हैं? 26 इस क्लास में भी 26 से ज्यादा हैं। पूरी यूनिवर्सिटी में कितने हैं? 2-3 हज़ार स्टूडेंट्स होंगे probably, right? So significantly larger number of students than the counters. सही है? And I can say कि जी, but then I can have a scheme and then I can have, now I want to do some optimizations. I want to see who's coming in first. I want to do some optimizations, but all of those optimizations are going to get quite sort of hectic if I'm dealing with a lot of people at the same time. इसका एक alternative क्या हो सकता है? Again ये एक discrimination है based on existing features. मैं ये कहूँ कि ये 26 counters हैं और मैं ये कहता हूँ कि every person, मतलब जो हर
काउंटर जो है वो एक अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज योर फर्स्ट नेम. तो I've got a counter A, B, C, D, E, F, G all the way to Z. और मैं कहता हूं कि आपका जो फर्स्ट नेम है उसकी बुनियाद पे यू गेट सर्विस, राइट? ये बात समझ आ रही है? सो अब मैंने क्या कर दिया कि बेसिकली जो मेरी जो पॉपुलेशन थी उसको मैंने उनके एक एग्जिस्टिंग कैरेक्टर की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेट कर दिया. अब ये वाला जो काउंटर जो ए को डील कर रहा है वो खाली ए को डील कर रहा है. फर्ज करें कि 26 के बजाय मेरे पास 52 काउंटर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा 52 काउंटर्स के आई यू नो 52 काउंटर्स का मतलब ये है कि मैं 2 ए के लिए, 2 बी के लिए, 2 सी के लिए, 2 डी के लिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दैट्स द सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट दैट वी आर प्लेइंग विद. ठीक है, अब नॉट एग्जैक्टली लाइक फॉर लाइक, लेकिन आई होप यू अप्रिशिएट इट. तो यहां पे भी हमें, तो बाय द वे इस प्रोसेस को जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया है, वी कैन कॉल इट अ मैपिंग फंक्शन. So I'm saying I have a population of people who have names that can be represented by the English alphabet. तो हमने क्या किया कि हमने मैपिंग फंक्शन बनाया है कि anybody whose name starts with an H, for example, is going to go to those counters. So all the people whose names start with an H are mapped to those counters. ठीक. अब इसका मतलब ये है कि if I'm doing some kind of optimization on just H, I can do it. I'm dealing with just 2 counters. तो मेरी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बेसिकली क्या कर रही है, सिर्फ 2 काउंटर्स को देख रही है, वो 52 काउंटर्स को नहीं देख रही. ठीक है, इसी तरह से जो बी, तो इट्स अ वेरी जेनेरिक सॉर्ट ऑफ एन एग्जांपल, लेकिन यू वुड गेट द स्पिरिट ऑफ द प्रोसेस. तो हम इसको क्वांटिफाइबली भी देखेंगे कि देयर इज मैथमेटिकल एक्चुअली एविडेंस with regards to performance in different types. ठीक, तो ठीक है, तो हमारे पास टैग स्टोर होता है. तो टैग स्टोर बेसिकली क्या है कि क्योंकि अगर मैंने फर्ज करें लेट्स से कि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में क्या पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा ब्लॉक उठा के मैं यहां डाल देता हूं. ठीक है, तो मेरे पास इस डेटा को देख के कोई तरीका नहीं है पहचान करने के लिए कि ये डेटा कहां से आया है, इंप्लिसिटली नहीं है. ये बात किसी को जिसको क्लियर नहीं है वो भी बताए. अगर आपको ये बात समझ नहीं आई, सबको समझ आ गई? शर्मा तो नहीं रहे, बट इधर सबको समझ आ गई. डेटा को देख के मैं नहीं पहचान सकता ये डेटा कहां से आया है. जिस तरह मैं आपकी शक्ल देख के नहीं पहचान सकता आपका नाम क्या है, मतलब until I know you personally, लेकिन रैंडमली अगर लोग चल के आ रहे हैं और मैं कहूँ कि बस मैं उनकी शक्ल देख के पहचान लूंगा नाम क्या है, तो मैं डेटा को देख के नहीं पहचान सकता उनकी पहचान क्या है. तो उसके लिए क्या होगा कि बिकॉज लेट्स से कि मैं ये कहता हूं कि तमाम, लेट्स से आई से दैट ऑल, लेट्स यूज अनदर कलर, लेट्स से यू से ऑल इवन एड्रेसेस, या ठीक है या ऑड कह लें, ये वाले सारे एड्रेसेस जो हैं मैं इस ब्लॉक को डेडिकेट करता हूं. ठीक है, should use another color. ठीक है, तो आई एम डेडिकेटिंग दीज टू हियर. ठीक है, और ये वाले जो ब्लॉक्स हैं ये सब एक सेट का हिस्सा है. ठीक है, तो 2 सेट्स बन गए. तो ये वाला है. ठीक है, यानी कि ये जो 2 हैं, ठीक है, वो इधर जाएंगे और ये 2 इधर जाएंगे. ठीक है, तो अब मैंने कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म इस्तेमाल करना है एड्रेस के अंदर ताकि मैं इसको प्रॉपर्ली मैप कर सकूं. इसमें अब क्या होगा कि प्लेसमेंट क्या होगी कि मैंने एक एक्सेस की एंड दैट डाटा नेवर एग्जिस्टेड, आई पुट इट देयर, देन आई डिड अनदर प्लेसमेंट, मे बी आई वांट, लेट्स से फर्स्ट आई वांटेड दिस वन, देन आई वांट दिस वन, क्योंकि मुझे ये वाला चाहिए तो मैं इसको इधर डाल देता हूं. ठीक है, और अगर मुझे अब ये कैश खाली पड़ी हुई है ये वाली, ठीक है, फर्ज करें कि अगर मेरी अगली रिक्वेस्ट आती है फॉर दिस वन, तो वेयर शुड इट गो, वेयर, इधर रिप्लेसमेंट होगी, राइट. So you can see कि there may be an argument कि जी हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए and so on and so forth. ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इसकी जो बैकग्राउंड हमने देख ली है काफी ज्यादा, तो अब उसके थोड़े से कॉन्क्रीट उस पर जाते हैं. मेरा ख्याल है I have an example in the next slide that is going to be probably more fruitful. ठीक है, let me just close this.
And Haji, if you have any questions or anything that you feel like you need to discuss, you can discuss it with me. जी class. Excuse me. हाजी बेटा, आपके साथ उजाम कौन बैठे हैं? उजाम, आपके साथ जो बैठे हैं का नाम क्या है? बेटा आपका नाम क्या है? हारिस, बातें ना करें, ठीक ठीक है. मैपिंग स्कीम इज रिक्वायर्ड टू रिलेट लोअर मेमोरी टू हायर लेवल. ठीक है जी, तो ये हम आगे जब देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा. फुली एसोसिएटिव, केस सेट एंड डायरेक्ट, दे आर ऑल बेसिकली सिमिलर. अच्छा, एक बात, हम आप इसको थोड़ा सा क्वांटिफाइबल टर्म्स में जा रहे हैं. अ कैश में हैव मेनी ब्लॉक्स, ऑब्वियसली दीज ब्लॉक्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेट्स. हम अभी ये बात कर चुके हैं. जब भी हम बात कर रहे थे वो ये था कि सेट्स में हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते. ठीक है, जब हम बात कर रहे होते हैं ना फुली एसोसिएटिव की, इसका मतलब है कि हम किसी सेट में उसको डिवाइड नहीं कर रहे, हम सेट्स में डिवाइड नहीं कर रहे. सो दे मे बी classified into different sets, but if I'm working fully associative, I'm not working in sets. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं K क्या है. ठीक है, तो these blocks can be organized into sets and K would represent the number of blocks in one set. इसका क्या मतलब है कि फर्ज करें कि मेरे पास मेन मेमोरी में 500 ब्लॉक्स हैं. अगर मेरे पास मेन मेमोरी में 500 ब्लॉक्स हैं और मैं कहता हूं कि मैं उनको सेट्स में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, और मैं कहता हूं कि मैं उनको 4 सेट्स में डिवाइड कर रहा हूं. मेरे पास 500 ब्लॉक्स हैं एग्जैक्टली, और मैं उनको 4 सेट्स में डिवाइड कर रहा हूं. तो मेरे पास फिर एक सेट के लिए कितने ब्लॉक्स होंगे जो मैप कर रहे होंगे जी? 125. ये बात सबको क्लियर है? तो K क्या है? K would represent the number of blocks in one set, obviously. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द मेन मेमोरी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सेट्स. यस, ठीक. So remember the number of blocks in the lower memory is going to be much higher than we have talked about this repeatedly. ठीक. So the main address is broken into 3 parts to identify the sets. The set part identifies the set that the block will be in. यानी कि एक हिस्सा नाम का ऐसा रख लेंगे, जिस तरह हमने कहा था कि आपके नाम के अल्फाबेट का पहला लेटर हम रखेंगे पहचानने के लिए. इस तरह हम क्या करेंगे? एड्रेस का एक हिस्सा होगा जो कि सेट को पहचानेगा. ठीक है, इससे मुझे क्या पहचान, अच्छा इसका मतलब पता क्या है? मैं इसका मतलब बताता हूँ, गौर से सुनिएगा. इसका मतलब यह है कि तमाम ब्लॉक्स जो एक सेट से बिलोंग करते हैं उनकी वो सेट वाली वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए. ये क्लियर? ये बात प्लीज, कई दफा लोग इसमें अभी ऑब्वियस लग रही है, लेकिन कई दफा जब वो इसकी प्रॉब्लम्स करते हैं, स्पेशली मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स करते हैं, तो वो थोड़ा सा भूल जाते हैं. मैंने क्या कहा था? मेरे पास 500 ब्लॉक्स हैं मेन मेमोरी में. मैंने कहा मैंने 4 सेट्स बनाने. इसका मतलब है मेरे पास 125 125 125 125 के 4 सेट्स, मतलब 125 के नहीं है, हर सेट के, मैं एक और जुमला बोलूंगा, हर सेट के 125 कैंडिडेट हैं. ये सही है? अब उनके एड्रेस का एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए जो तमाम ब्लॉक्स का कॉमन हो, और वही उनकी पहचान होगी. ठीक है, तो एड्रेस का वो हिस्सा जो उनके तमाम में कॉमन होगा और वो चीज उसकी पहचान होगी. ठीक है, लेकिन फर्ज करें कि मेरे पास एक एड्रेस आता है, मेन मेमोरी कहती है लोड into R16 from X. Now X is what? An address. So there's a part of the address which I pick up and say that this belongs to this set. But for that particular set, how many candidates do we have? In this example, 125 candidates. So अगर मेरे पास 125 candidates हैं, तो I want to know which specific block I'm picking up. I don't want to pick up any random block. Like if I'm saying, I'm calling somebody whose name starts with the letter, so this is the counter for letter H, for example, but I want to call a particular person whose name is starting with an H. But by the way, this is where the tag store is going to come into place. ठीक, तो ये जो टैग होगा वो बताएगा कि कौन सा पर्टिकुलर ब्लॉक है जो उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है. नाउ इसमें एक और बात भी क्लियर होनी चाहिए
कि जो टैग की वैल्यू होगी, क्योंकि देखिए एक बात करें, एक एड्रेस है ना, तो उस एड्रेस का कोई हिस्सा मैं ले रहा हूं एज अ सेट, उसका एड्रेस का कोई हिस्सा ले रहा हूं एज अ टैग, तो उस जहां जहां पे वो सेट होगा उसके अंदर ये जो टैग है ये यूनिक होगा ऑब्वियसली। ये क्लियर है? यानी जो हमने एग्जांपल बात की कि मेरे पास 4 सेट्स थे, तो 100, इसका मतलब है जो 125 कैंडिडेट हैं उनका जो टैग होगा वो सेम होगा और उनका सेट होगा यूनिक होगा विद इन दैट टैग। ये बात अगर नहीं समझ आ रही, कोई कंफ्यूजन है जी, मैं आपको बता रहा हूं, बल्कि आई वुड डू इट देयर ऑन द बोर्ड सो दैट इट गोज इनटू द रिकॉर्डिंग। ठीक है, सो लेट मी से कि आई हैव अ मेमोरी, ठीक है, और हर लोकेशन का, एक्सक्यूज मी, ड्रॉ क्यों नहीं कर रहा है ये, ठीक है, मेरे पास एक मेमोरी है, कर ली बात, बढ़ा लूं, थैंक यू, ठीक है, इसका एक लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। सो मैं चाहता हूं कि ये और बाय द वे ये ब्लॉक है, ये एक लोकेशन नहीं है, और ये सब एक के हिस्सा हो, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इनका एड्रेस कोई ऐसा हो जिसमें कोई कॉमनैलिटी हो। लेट्स से कि इसका एक एड्रेस है, इसमें काफी सारे डिजिट्स होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जी लेट्स से अगर इसका टैग पार्ट जो है ना वो 0 है, जो आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये इस रेड सेट से बिलोंग करते हैं, तो इसका भी 0 0 होना चाहिए, इसका भी 0 0 होना चाहिए, ठीक है, एक और भी बीच में डाल देते हैं, ठीक है, ये एक और लेट्स से एक और भी है, ऑब्वियसली दे आर यूजुअली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन मैं ऐसी, ठीक है, सो दे ऑल शुड हैव, जो एड्रेस का वो हिस्सा जो टैग को आइडेंटिफाई करना है वो 0 0 होना चाहिए, क्योंकि ये सारे एक सेट को बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर मैंने देखना है कि मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं या इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं या इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं या इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं, तो एक मेरा एड्रेस का ऐसा हिस्सा होगा जो आइडेंटिफाई करेगा कि पर्टिकुलरली कौन सा है, सो आई नो दैट इट बिलोंग्स टू दिस सेट, बट व्हिच वन पर्टिकुलरली एम आई टॉकिंग अबाउट, राइट? तो इसका मतलब है कि आई शुड हैव अ पार्ट इन द एड्रेस व्हिच इज एक्चुअली टेलिंग मी व्हिच पर्टिकुलर ब्लॉक इट इज, ठीक है, तो एक सेट के लिए जो ये वाला हिस्सा है जो कि बता रहा है कि पर्टिकुलरली कौन सा ब्लॉक है वो यूनिक होना चाहिए। सो लेट्स से आई वुड से दिस शुड बी लाइक 0 0 0 1 1 0 1 1, लेट्स से। लेकिन अगर मेरे पास फर्ज करें लेट्स से थ्योरेटिकली कि आई हैव अनदर वन व्हिच इज आल्सो 0 0 and it's also 0 0, so basically there's no way I can differentiate between this and this जी, वो तो सेकेंडरी चीज है, और बाय द वे इट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन बिकॉज that is going to determine how we are going to allocate bits in the main memory, sorry in the address for this part. लेकिन अभी मैं that's besides the point. The point I raised was that they have to be unique. If they're not unique, तो within a set मैं identify नहीं कर सकता कि which block you're talking about, because मैं आपको दोबारा से करता हूँ, I know it's a bit slow, कि जब भी मेरे पास कोई let's say कि मैं ये लिख देता हूँ एक command, ठीक है, so I've got a load into R16 from an X, so the X is lying somewhere here, और इसका एक एड्रेस है, तो बेसिकली होना क्या चाहिए, अब गौर से मेरी बात सुनिएगा, कि ये जो है ना 0 0 1 0 ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस इंटायर ब्लॉक को, राइट? इसका मतलब है कि मेरा 0 0 1 0 ऐसा होना चाहिए कि पहले एलिमेंट से लेके आखिरी एलिमेंट तक ये 0 0 1 0 कॉमन हो। ये बात समझ आइए? अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो तहरीर है, देखिए मुझे एक बात बताएं, ये नजर आ रही है आपको कमांड पीछे, क्या ये किसी ब्लॉक को एड्रेस कर रही है या किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर रही है? मेमोरी लोकेशन। तो मेमोरी लोकेशन क्या होगी? मेमोरी लोकेशन इस तरह की कोई चीज होगी, एक मेमोरी लोकेशन,
अगर मैं ये कह रहा हूं कि इस ब्लॉक के अंदर सारी मेमोरी लोकेशंस के एड्रेस ऐसे होने चाहिए ताकि उनका टैग सेम हो, क्योंकि दे बिलोंग टू द सेम सेट, और उनका ये वाला पार्ट भी सेम होना चाहिए बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम ब्लॉक, राइट? तो इसका मतलब है कि मैंने कि ऐसा पार्ट ऑफ द एड्रेस इस्तेमाल करना है जो कि कंसिस्टेंट है विद इन दैट थिंग। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है? तो इससे मैं, और ये होगा, तो बेसिकली ये वाला मेरा आइडेंटिफायर है, दिस वुड बी माय आइडेंटिफायर ऑफ विच ब्लॉक। सो दिस इज टेलिंग मी कि ये कौन सा सेट है, ये मुझे बता रहा है कि कौन सा पर्टिकुलर ब्लॉक है। अब मैंने वो ब्लॉक जो है उठा के मेन मेमोरी से कैश में लोड कर दिया है, लेकिन मुझे एक्चुअली क्या चाहिए था? एक्स चाहिए था ना। एक्स क्या चीज है? ये है। तो ये मेरा क्या होगा? ऑफसेट होगा। या दिस इज गोइंग टू बी एन एड्रेस व्हिच इज गोइंग टू टेल मी कि मुझे इस विद इन दिस ब्लॉक इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज 0 0 and large element is whatever depending on the size of the block, right? So if this is x, for example, imagine करें कि this is x, तो मेरा offset क्या होगा कि this will facilitate me a to do two things. Main memory में locate the block, and if it's missing or if it needs to be replaced, in the case of a miss, I'm able to pick up the whole block and put it in the cache. But what am I interested in actually? That one element of data. तो मैं क्या करूंगा? अब वो कैश में आ गया है, कैश में आ गया, अब गौर से सुनिएगा दोबारा क्या होगा कि अब मैं दोबारा टैग स्टोर के थ्रू वहां पे आई एम गोइंग टू रीच दैट ऑफसेट इन दैट ब्लॉक। तो मैं सिंपली क्या करूंगा? ब्लॉक के अंदर जाके देखूंगा कि ये जहां पड़ा हुआ है इसका ऑफसेट में वो डेटा कहां पड़ा हुआ है, एंड दिस इज हाउ इट टॉक्स। सो इट वुड मेक मोर सेंस व्हेन वी लुक एट सम पुअर अटेम्प्ट्स एट एनिमेशन। जी जी, in this particular case this is an example. जी जी, sorry, set part, sorry, set, I'm sorry, thank you for, so that's the set part and the other one is the tag part, ठीक? और एक और चीज भी नोट करें, जो टैग स्टोर वाली बात हमने की थी कि किसी भी, फर्ज करें कि मैं किसी भी एक वक्त में 2 ब्लॉक स्टोर कर सकता हूं, तो फर्ज करें कि मेरा किसी भी एक टाइम में, लाइक एट दिस पॉइंट इन टाइम, लेट्स से मैंने ये वाला पर्टिकुलर ब्लॉक स्टोर किया हुआ है और ये वाला ब्लॉक स्टोर किया हुआ है, तो ये इंफॉर्मेशन मेरे टैग स्टोर में होगी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये वाले पर्टिकुलरली 2 ब्लॉक कैश के अंदर पड़े हैं, और अगर मेरे पास कोई मेमोरी रिक्वेस्ट आती है फॉर अनदर ब्लॉक इन द सेम सेट, दैट इज गोइंग टू बी अ रिप्लेसमेंट, ठीक? बट दैट इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम द टैग स्टोर, ठीक है? सो मैं इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूं, आई एम टेकिंग माय टाइम विद इट बिकॉज in my experience sometimes people don't have grounded clarity on it, ठीक है? तो टैग क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई कर रहा है पर्टिकुलर ब्लॉक, and remember the number of candidate blocks in the main memory is very large, वगैरह वगैरह। ऑफसेट क्या है? I hope you understand now, तो I hope, ठीक है जी, clear? So this is like an example, I will like really skip this। सही बताता हूँ ये क्या है, what this says actually। This is saying के the first is an example of, let's go to the last one, ठीक है? So the last one is an example of fully associative, ठीक है? और वो बेसिकली क्या कह रहा है कि एनी सेट कैन गो एनीवेयर। ये डायरेक्ट मैप कह रहा है। डायरेक्ट मैप बेसिकली क्या कह रहा है कि हर सेट जो है वो एग्जैक्टली एक लोकेशन पे जाएगा। हर सेट के लिए, अगर मेरे पास 10 सेट हैं तो मेरे पास कैश में 10 ब्लॉक्स हैं। ये वो वाली मिसाल थी कि अगर 26 अल्फाबेट्स हैं तो हर अल्फाबेट की एक विंडो है, ठीक है? ये पता है क्या एग्जांपल है? और एक्चुअली हमारा जो प्लेइंग ग्राउंड होगा ना, ये प्लीज ये वाला होगा। तो इसके ऊपर बेसिकली हम जो बात करेंगे ना ऑप्टिमाइजेशंस की, सो दिस इज व्हाट वी विल फोकस ऑन। ये क्या कह रहा है कि मेरे पास चार सेट हैं, और हर सेट, यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास 8 सेट है, मैं कह रहा हूं यहां मेरे पास 4 सेट हैं। बाय द वे मैं ये कह नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब यही होता है। डायरेक्ट मैप का मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास 8 सेट है, यहां मैं कह रहा हूं मेरे पास 4 सेट हैं, और ये पर्टिकुलर जो है सेट 1 के लिए मैं 2 ब्लॉक्स, सेट 2 के लिए 2 ब्लॉक्स, सेट 3 के लिए 2 ब्लॉक्स, एंड 4 के लिए 2 ब्लॉक्स मेरे पास स्पेस है। नाउ द रीजन व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस राइट नाउ इज कि डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेट्स and the size of the set, and then the number of blocks I can associate in the set,
is going to affect my speed and my performance. और हमारा फोकस सारा ये है, इसलिए हम ठीक है इसके ऊपर फोकस करेंगे. So I'm just going to run through an example. So a computer uses a 32-bit addressing, which means कि addresses की 32 bits हैं, ठीक है. और वो क्या करता है, टू वे सेट एसोसिएटिव इस्तेमाल कर रहा है, टू वे सेट एसोसिएटिव. अब ये टर्मिनोलॉजी है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड टर्म. इसका क्या मतलब है टू वे सेट एसोसिएटिव? सेट यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन टू वे सेट एसोसिएटिव है ये टर्म. दिस इज अ डायरेक्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम योर बुक, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू इट्स अ टू वे सेट एसोसिएटिव. इट मींस कि फॉर एवरी सेट आई कैन टेक टू ब्लॉक्स. तो ये क्या है, टू वे सेट एसोसिएटिव. अगर मैं कहूं फोर वे सेट एसोसिएटिव तो इसका क्या मतलब है? हाँ, हर ब्लॉक के लिए मैं हर सेट के लिए मैं 4 ब्लॉक्स ले सकता हूं बैक वक्त. अगर मैं कहूं 8 वे सेट एसोसिएटिव, इसका मतलब है कि मैं हर ब्लॉक के लिए हर सेट के लिए 8 बैक वक्त ले सकता हूं. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी रेलेवेंट. तो मेरे पास क्या है, टू वे. जी 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 एग्जैक्टली. तो हम उसको इन किसी किताब में नहीं लिखा, लेकिन यू विल नॉट बी रॉन्ग इफ यू से कि जो डायरेक्ट मैपिंग है दैट इज वन वे सेट एसोसिएटिव, बिकॉज हर सेट के लिए मैं एक हाँ. टू वे सेट एसोसिएटिव, हर सेट के लिए 2 ब्लॉक. फोर वे सेट एसोसिएटिव, एंड इट गोज बियॉन्ड. आई थिंक बाय नाउ यू नो के डिनोमिनेशन इस तरह होंगे, वन वे, टू वे, फोर वे, पावर ऑफ 2 डिनोमिनेशंस में होंगे. ठीक है, अब गौर करें कि हाउ वी वर्क आउट द. सो द कंप्यूटर यूजेस 32 बिट बाइट एड्रेसिंग. तो मेरे पास 32 बिट्स हैं एड्रेस के लिए. इसका मतलब है ये 32 बिट्स हैं, इनको मैंने लेवरेज करना है फॉर सेट, टैग एंड ऑफसेट. मैं टू वे सेट एसोसिएटिव कर रहा हूं. एक बात हमें पता लग गई है, तो हर सेट के मैं 2 कैंडिडेट्स एक टाइम पे एकोमोडेट कर सकता हूं. और जो कैश है उसकी कैपेसिटी है 32 किलो बाइट. ठीक है, अभी तक मुझे क्या क्या पता लगा कि मेरे पास, मुझे मेन मेमोरी के बारे में भी नहीं पता लगा. मुझे ये पता है कि मेरे पास मेन मेमोरी है जिसकी एड्रेस 32 बिट है, और मुझे ये पता है कि मेरा जो कैश है उसका साइज जो है वो 32 किलो बाइट्स है. अगले जाएं, ईच कैश ब्लॉक कंटेन्स 16 बाइट्स. अच्छा, बाय द वे, सो दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट अ बाइट. तो हमारा जो सिस्टम है एक्चुअली, ये सिस्टम को अगर मैं बिट्स में डिफाइन करूं तो ये कितने बिट का सिस्टम है? इट्स एन 8 बिट सिस्टम. So the address is 32 bit, but the system is an 8 bit system. Excuse me. जिस तरह अगर आपको याद हो, जब ATmega 328P पे आप काम कर रहे थे, that was also an 8 bit system, लेकिन उसके एड्रेस कितने थे? 10 बिट थे एड्रेस. 10 बिट्स थे, या ऐसे थे ना, 10 बिट्स थे एड्रेसिंग, if not 16. They were more than 8. ठीक है, so you can have more than, ठीक है, but so we are talking in bytes. ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक ब्लॉक के अंदर 16 बाइट्स हैं, यानी कि 16 एटॉमिक यूनिट्स ऑफ डेटा. कैलकुलेट द नंबर ऑफ बिट्स इन टैग, सेट एंड ऑफसेट. नाउ ये आप इस इंफॉर्मेशन को देके कर सकते हैं. कोई ट्राई करना है? क्या होगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, क्या होगा? अगर मेरे पास जो है, सुने एक बात बताएं, चलो मुझे एक बात बताएं. 16 बाइट्स. सो एक ब्लॉक, इसका क्या मतलब है? एक ब्लॉक के अंदर 16 लोकेशंस. नजर आ रहा है? बिलीव बाइट को, मतलब देखिए, अगर 8 बिट सिस्टम है तो एक बाइट को कर रहा हूं. अगर 16 बिट सिस्टम है तो 2 बाइट्स जो है वो मेरा एक डेटा एलिमेंट है, सो एक डबल को करूंगा. अगर मेरा समझ आई बात को? यानी कि फर्ज करें कि अगर ये 16 बिट सिस्टम होता और मेरे पास 16 बाइट होते, तो मेरे पास एक्चुअली कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स होंगे. अगेन, if you're not clear of what I'm saying, please repeat. Sorry, you can tell me. फैसल समझ आ रही है? नहीं समझ आई? देखिए मैं बताता हूं. मेरे पास ये देखें, वो प्लीज गौर करें और आपस में बात ना करें. शाहजेब करिए थे समथिंग फनी. व्हाट्स फनी? Coming to the class today? I don't know.
अजीब सा तो नहीं लग रहा, स्ट्रेंज सा? अगर इसका साइज जो है वो 16 बाइट्स है, ठीक है, और मेरा सो वन डेटा एलिमेंट इज 8 बिट, ठीक है, तो बिट का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसके अंदर कितने 1 बाइट होंगे इसके अंदर? सही है। और अगर फर्ज करें कि मेरे पास एक, तो ये एक और सिस्टम है, तो मेरे पास ये लेट्स से दिस वाज एन ए, आई हैव अनदर सिस्टम विच इज बी, जिसके अंदर 1 डेटा एलिमेंट इज 16 बिट, एक डबल। अब मुझे बताएं कि इसी मेमोरी के अंदर मेरे पास कितने यूनिक लोकेशंस होंगी? 8 होंगी। ये बात बेटा समझ आई? क्लियर है ना ये बात? और अगर मैं कहूं कि दिस इज द साइज एंड इफ दिस थिंग इज अ ब्लॉक, राइट, दिस इज अ ब्लॉक, सो दिस इज माय ब्लॉक जी। चले मैं आपको क्या एग्जांपल दूं? किसको? नहीं, 16 बाइट्स तो ब्लॉक का साइज है ना। नहीं, बिट्स में क्यों कन्वर्ट करें? दैट्स वेरी इनकन्वीनियंट and I'm not going to go into a discussion right now okay why, but it's a very inconvenient way to go about things, ठीक है? It is patently inconvenient, let me put it this way. भाई बाइट्स का मतलब क्या है? एक बाइट क्या होता है? 8 बिट्स। अगर आपने करना तो कर लें, कान आपने इधर से पकड़ना तो फिर ये करिएगा, जहां भी बाइट्स हो उसको 8 से मल्टीप्लाई करिएगा, फिर दोबारा किसी पॉइंट पे 8 से डिवाइड कर लीजिएगा, इफ दैट गिव्स यू, आई डोंट नो। देखो आप ये भूल जाओ कि बिट्स क्या है, यू अंडरस्टैंड व्हाट अ बाइट इज। बाइट क्या होता है? समझ आ गई है तो बस फिर आप मेहरबानी ना करें बाकी क्लास पे। अगर आपको समझ नहीं आई तो फिर बताएं, मेहर समझ आ रही है? ठीक है, बट आपको समझ नहीं आई। आपके पास एक ड्रम है जिसमें 5 लीटर पानी आता है। कितना लीटर? आपके पास 1 लीटर की बोतल है, तो कितनी बोतलें उसके अंदर आप डाल सकते हैं? कितनी बोतलों? इनसे जिनको प्रॉब्लम है उनसे सवाल पूछ रहा हूं। 5 लीटर का ड्रम है, 1 लीटर की बोतल है। अब मैंने क्या करना है, नलके से पानी भरना है 1 लीटर की बोतल में और ड्रम के अंदर डालना है ताकि ड्रम भर जाए। मुझे बताएं कि उस 5 लीटर के ड्रम में 1 लीटर की मैं कितनी बोतलें डाल सकता हूं? 5। अच्छा, अगर मेरे पास हाफ लीटर की बोतल हो, 1 लीटर वाली नहीं हो, 500 ml की बोतल हो, तो कितनी डाल सकता हूं उसके अंदर? 10। 16 बाइट, 16 बाइट्स का मेरे पास एक ब्लॉक है, उसमें मैं 1 बाइट के साइज के कितने डेटा एलिमेंट्स डाल सकता हूं? 16 बाइट का ब्लॉक है। 16 बाइट का मतलब क्या है? बाइट एक चीज है और मेरे पास 16 उस तरह के हैं बाइट्स, तो मैं उसमें कितने बाइट्स डाल सकता हूं? 16। ऑब्वियस है ना। फर्ज करें कि मेरे पास बाइट नहीं है जो मैंने डालना है, मेरे पास जो चीज मैंने उसमें उसी चीज में डालनी है, उसका साइज 2 बाइट्स के बराबर है, तो मैं आप बताएं कितने सारे डाल सकता हूं उसके अंदर? ये बस इतनी सी बात थी। Anybody else? I don't mind if somebody doesn't understand it and they ask the question. इसमें कोई भी शर्म महसूस ना करे, ठीक है? समझ सबको आ गई है? अब मुझे बताएं कि इस समय अब बेसिकली हमारा प्रॉब्लम क्या था? हमारा प्रॉब्लम था कि हमने इससे we have to make some meaningful inferences from it, right? तो अगर 8 बिट सिस्टम है और मेरे पास 16 बाइट्स है एक ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक के अंदर सबको क्लियर है ना ब्लॉक क्या चीज है? तो मुझे बताएं कि इससे मुझे किस चीज की इंफॉर्मेशन फौरी तौर पे मिल रही है? ऑफसेट की। इसमें मुझे ऑफसेट की इंफॉर्मेशन फौरी तौर पे मिल रही है। ये बात किसको समझ नहीं आई? ये मेरा ब्लॉक है। नाउ दिस ब्लॉक मे बी इन द मेन मेमोरी, दिस मे बी इन द कैश, दैट्स इररेलेवेंट रियली। बात
दिस वो सही है, गुड, थैंक यू। बिट्स की बात, लेट मी जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक। ये एक ब्लॉक, मेरे पूरी की पूरी मेमोरी जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, राइट। सो दिस ब्लॉक मे बी इन द मेन मेमोरी, दिस ब्लॉक मे बी इन द कैश। 16 ऐसे ही है। तो 16 के लिए मेरे पास क्या होगा, लाइक समथिंग लाइक दिस, इफ दैट होपफुली गिव्स मी 16। हो गया जी, अब हो गया, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं ब्लॉक उठा के मेन कैश में रख देता हूं, और मेरी जो एक्चुअल रिक्वेस्ट आई है वो इसके लिए आई है, तो ऑफसेट क्या था? ऑफसेट ऑफसेट ये था कि अगर मैं सेट तक पहुंच गया हूं और टैग तक पहुंच गया हूं, तो सेट क्या है कि ये किस सेट से बिलोंग करता है? कैपिटल बी, सॉरी बी, इट कैन बी अ सेट, राइट। एंड देन विच पर्टिकुलर पर्सन इज दिस, rather which particular block is it, which particular block is this, that is my tag। अब मैं कहां पहुंच गया हूं? इस जगह पहुंच गया हूं, स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक, जिसमें इसका ऑफसेट है 0 0। लेट्स से कि मैं उसमें कर लेता हूं, ठीक है। लेट मी जस्ट डू दिस, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। So if I have this block in my cache, I can use the offset to reach what this thing, this part जिसको मैंने एक्सेस करना था। तो इसका ऑफसेट, आप समझ आई बात? तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर ये इंफॉर्मेशन मौजूद हो कि मेरा 8 बिट का सिस्टम है, ब्लॉक का साइज 16 है, ब्लॉक का साइज, इट मींस कि ब्लॉक का साइज 16 है इन द लोअर मेमोरी एंड इन द कैश। मैं लोअर मेमोरी इसलिए कह रहा हूं कि मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास एक ही कैश है तो मेन मेमोरी में ब्लॉक का वही साइज है, कैश में भी ब्लॉक का वो साइज है। तो ऑफ साइड का साइज मुझे फौरी तौर पे पता लग गया, क्यों? क्योंकि मेरे पास 16 लोकेशंस हैं इनसाइड द ब्लॉक। सो द ऑफ साइड इज गोइंग टू बी व्हाट, 2 raised to the power n, which should be equal to 16। हाँ, whatever, हाँ, 4। yes, किसको? are you following? ish, you thinking? no? बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे। गुड पॉइंट। बेटा हसान, समझ नहीं आ रही? ये भी एक कैफियत होती है, बच्चे को लग रहा था आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है कि यू नॉट रियली, कैन यू, वुड यू बी एबल टू एक्सप्लेन इट टुमारो इफ आई आस्क इन द नेक्स्ट क्लास के, आपसे कहूंगा आके प्रेजेंट करेंगे ये टॉपिक, तो फिर नहीं समझ आ रही जी? नहीं, एक दफा फिर से नहीं, एक दफा फिर से आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है। So the 16 bytes in the cache block, the offset, ठीक है, must contain 4 bits. Why? This thing. So that's one thing I know. अब मुझे ये बताएं कि मेरी two-way set associative है, by the way. So two-way set associative, ठीक है। Each cache, तो अगर मेरे पास, हमने ये देखना है कि मेरे पास सेट्स कितने हैं। Two-way set associative cache with capacity of 32 kilobytes। इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि मेरी कैश का साइज है, सो द कैश इज significantly larger obviously than the block, so I have a cache, सही है, और इस कैश का जो साइज है वो है 32 किलोबाइट्स। 32 kilobytes is by the way 32 into 1024, I hope you, ठीक है, kilobytes। so and now गौर कीजिएगा इस बात पे, for every set I will accommodate 2 blocks by virtue of the fact it's a two-way set associative, ठीक है, ये बस याद रखें। तो to determine the number of bits in the set field we need to determine the number of sets। तो number of sets कैसे निकालेंगे कि हर सेट के 2 ब्लॉक हैं और एक ब्लॉक का साइज क्या है, 16 बाइट। तो मैं क्या करूंगा,
मैं लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे, टोटल कैश का, चले ये बताएं कैश में टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, उसके लिए करेंगे क्या, आप वैल्यू ना बताएं, सबसे आखिर में बैठे हुए हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द कैश, कैश का साइज है 32 किलो बाइट्स, 32,000 बाइट्स, एक ब्लॉक का साइज है 16 बाइट। तो इसमें अगर मैं कहूं कि कैश में तब टोटल ब्लॉक्स की तादाद कितनी है, तो वो कितनी होगी, 32 किलो बाइट्स डिवाइडेड बाय 16 बाइट्स इज गोइंग टू बी द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ये बात क्लियर है, यहां पे क्लियर है सबको, क्लियर? अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि 30, तो इतने फर्ज करें एक्स वैल्यू आ गई, और मैं कह रहा हूं कि जो ये एक्स वैल्यू है इसमें मैं हर सेट को 2 ब्लॉक्स दूंगा, तो मेरे पास टोटल सेट्स की तादाद कितनी हो जाएगी, रुक जाएं, सांस लें, हाथ खड़ा करें जिसने बोलना, हाँ जी कितने, एक्स वैल्यू आई है, इफ एक्स इज द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, तो एक्स डिवाइडेड बाय 2 इज द नंबर ऑफ सेट्स आई हैव, नहीं नंबर ऑफ सेट्स, सांस लें, एक सेकंड क्रॉस टॉक नहीं करें, एक साथ ना बोलें, जिसको समझ नहीं आ रही वो हाथ खड़ा करे, आपको समझ नहीं आ रही, नहीं देखिए कैश, देखिए बात सुने, एक सेट के हजार, लेट्स गो विद दिस assumption, the assumption is that the main memory is infinite, बोलें, the main memory is what, it's not, but let's say it's infinitely large, तो हमारे पास any number of blocks है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने कैश के अंदर डालने, ठीक है, अब कैश का साइज है 32 किलोबाइट्स और एक ब्लॉक का साइज है 16 बाइट, तो ये बात आपको क्लियर है कि 32 किलोबाइट डिवाइडेड बाय 16 बाइट्स इज द नंबर ऑफ ब्लॉक्स आई कैन पुट इन द कैश। यहां तक बात क्लियर है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। हमारे पास एक टर्म आती है चलते चलाते, वो कहता है टू वे सेट एसोसिएटिव, सांस लें, टू वे सेट एसोसिएटिव, वो ये कह रही है कि मैं हर सेट को 2 बाइट्स दूंगा, कैश कह रहा है, कैश कह रहा है कि मैं हर सेट को 2 बाइट दूंगा, 2 ब्लॉक्स, सॉरी 2 ब्लॉक्स दूंगा, रादर सॉरी, हर सेट को 2 ब्लॉक्स दूंगा। तो लेट्स से कि मैं कितने मैक्सिमम, इसको मैं रिवाइज करता हूं, मैं कितने मैक्सिमम सेट्स एकोमोडेट कर सकता हूं अपने कैश में, नहीं, टोटल नंबर ऑफ बाइट्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं कहता हूं कि मैं 4, इफ दिस इज 4 वे सेट एसोसिएटिव, और मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको 4 ब्लॉक्स पर सेट एकोमोडेट करूंगा, तो जो भी वैल्यू होगी डिवाइड बाय 4, ठीक है, बिकॉज आई, सो ये हिंट है कि इस तरह के सवाल आएंगे, ठीक, सो टू डिटरमिन द नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, सो ईच सेट कंटेन्स 2 कैश ब्लॉक्स बिकॉज इट्स, तो ईच सेट, तब इसने द वे इट्स गोइंग अबाउट इज कि हर सेट के 32 बाइट्स होंगे, राइट, एक ब्लॉक 16, 2 32, and there are 32 kilobytes in the entire cache, so there are 32 KB divided by 32 byte, 1 किलो, यानी कि 1024 सेट्स है मेरे पास। अब जैसे मैंने अल्फाबेट की बात की थी ना, 26 अल्फाबेट, इस तरह यहां पे यूनिक 1024 डिस्टिंक्ट, ठीक है, तो दस द सेट फील्ड कंटेन्स, क्योंकि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सेट्स की तादाद जो है वो ये है, ये इतना अच्छा सिनेरियो नहीं है बाय द वे, but let's say it is what it is in this example, so I need 10 bits to identify every set uniquely। अभी मैंने ये बात नहीं की कि मेन मेमोरी में तादाद कितनी है, मैं ये कह रहा हूं मेरे पास 1000 सेट्स हैं, जैसा अगर मैं कहूं कि 1000 अल्फाबेट हैं, ठीक है, और हर अल्फाबेट जो है वो एक अलग सेट है, ठीक है, तो 1000 सेट्स हैं, हर सेट के कितने एक्चुअल ब्लॉक्स मेन मेमोरी में, मैंने इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा अभी, मैं सिंपली कह रहा हूं कि मेरे पास 1000 सेट्स हैं और मेरी कैश जो है वो हर सेट को 2-2 डेडिकेटेड ब्लॉक्स दे सकती है, यानी कि 2000 ब्लॉक्स, राइट। तो अब इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हम उसके एड्रेस को किस तरह से ब्रेक डाउन करेंगे
कि हमारा जो, देखिए ये इंफॉर्मेशन ऑफसेट से आई है, सेट की सेट से आई है, और जो रिमेनिंग बाइट्स या बिट्स होंगी उनको मैं टैग के लिए डेडिकेट कर दूंगा। इसका मतलब है कि जब भी मेरे पास लेट्स से इस तरह की कोई आती है कमांड, ठीक है, लेट्स से सो मैं कहूँ लोड, ये भी कुछ असेंबली में इस तरह से होता है, तो मैं कहता हूँ लोड इनटू R16, ठीक है, किसी का चार्जर तो नहीं पड़ा हुआ अभी, टाइम क्या हो रहा है, हाउ आर वी डूइंग फॉर टाइम, R6, किसी का डेल का चार्जर पड़ा हुआ है अभी फौरी तौर पे, अब तो किसी के पास नहीं होगा। एक सेकंड आए। हाँ, तो मेरे पास बेसिकली एड्रेस है, तो मैंने बाय वर्च्यू ऑफ ऑल दिस इंफॉर्मेशन आई नो दी ऑफसेट, लेकिन मेरा तरीकाकार क्या होगा, और तरीके का, लेट्स से कि पहली दफ़ा आ रहा है, पहली दफ़ा हम अज्यूम कर सकते हैं सेफली, जब कंप्यूटर मैंने स्टार्ट किया है तो हम अज्यूम करेंगे कि टैग स्टोर इज एम्प्टी। जब भी कोई कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो कैश में कुछ भी नहीं पड़ा होना चाहिए, राइट। इसका मतलब है कि मेरी पहली रिक्वेस्ट तो डेफिनेटली इज अ मिस, तो जब मेरी पहली मिस होगी तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास सबसे पहले क्या आएगा, एड्रेस आएगा। इस एड्रेस को लेके इसमें से मैं देखूंगा सेट पार्ट कौन सा है, सेट पार्ट को उठा के मैं देखूंगा टैग स्टोर में जाऊंगा, ठीक है, एंड आई एम गोना सी कि इफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देखूंगा गौर से, ये जो सेट है ये क्या चीज आइडेंटिफाई करी, ये आइडेंटिफाई करी कि ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है। अब मुझे ये, इससे मुझे ये पता लगा कि मैंने टैग स्टोर के किस सेक्शन को देखा है, लेकिन किस पर्टिकुलर ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, किस पर्टिकुलर ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन टैग में मिलेगी। अब मैं क्या करूंगा कि टैग स्टोर के अंदर जाके देखूंगा कि पहली एंट्री क्या टैग इस टैग के साथ मैच कर रही है, तो ऑब्वियसली वो मैच नहीं करेगी क्योंकि पहली दफा इस्तेमाल करूंगा। फिर दूसरी एंट्री को देखेगा वो टैग से मैच कर रही है, और कितनी को करूंगा मैं, 2 को। क्यों करूंगा 2 को, क्योंकि ये 2 वे सेट एसोसिएटेड है। अगर ये 4 वे सेट एसोसिएटेड होता तो मैं क्या करता, सेट उठाता, मुझे रिक्वेस्ट क्या आई है, लोड इनटू R16 फ्रॉम एक्स के एड्रेस को मैंने खोला, उसमें मैंने देखा सेट का पार्ट कौन सा है, उससे मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये किस सेट को बिलोंग करता है। मैं टैग स्टोर के रेलेवेंट सेक्शन में गया, अब मेरे पास अगर ये 4 वे सेट एसोसिएटेड है तो उस सेट के अगेंस्ट मेरे पास 4 एंट्रियां होंगी टैग स्टोर के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले को कंपेयर करूंगा इस टैग से, दूसरे वाले को कंपेयर करूंगा इस टैग से, तीसरे को कंपेयर करूंगा इस टैग से, चौथे को कंपेयर करूंगा इस टैग से। और अगर मुझे सारे के सारे ये मिस हो जाते हैं, इसका मतलब है कि वो ये पर्टिकुलरली दिस डिस्टिंक्ट ब्लॉक इज नॉट इन द कैश, सो दिस इज अ मिस। अब वो मैं क्या करूंगा, अगला जो मैकेनिज्म है कि वो कैश क्या करेगा कि ये पूरे के पूरे एड्रेस के अगेंस्ट ना हो, इट्स गोइंग टू पिक अप द ब्लॉक फ्रॉम द मेन मेमोरी, और वो ब्लॉक जो है वो कैश के अंदर डाल देगा और टैग स्टोर को क्या करेगा, अपडेट कर देगा। टैग स्टोर अपडेट हो गया, और वो क्या करेगा, इस ऑफसेट के अगेंस्ट जो है वो डेटा मेन मेमोरी को, सॉरी प्रोसेसर को वापस दे देगा और R16 में डाल देगा। दूसरी रिक्वेस्ट आई, लोड R16Y, ठीक। तो दूसरी रिक्वेस्ट जो है, फर्ज करें कि वो इसी सेट के लिए और इसी टैग के लिए, लेकिन ऑफसेट उसका फर्क है। ये नहीं कि हो सकता है मैंने X प्लस किया तो जो अगला एड्रेस था मैं उसको चला गया। अब क्या होगा कि सबसे पहले वो सेट को देखेगा, उसको पता लग जाएगा कि मैं किस सेट में इंटरेस्टेड हूं। उसके बाद क्या करेगा कि उस सेट में जाएगा इन द टैग स्टोर, और टैग को कंपेयर करेगा पहले वाले से, तो उसको पता लगेगा कि जो टैग यहाँ पे पड़ा हुआ है इन द फर्स्ट टैग स्टोर मैचेस दिस वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमने भी पिछले ट्रांजैक्शन में लोड कर लिया था। अब उसको पता लग गया कि दिस नॉट ओनली इज देयर सम block available from this set, but that matches this tag, and this tag is unique. This tag is unique
to this block within the set. अब उसको पता लग गया कि जी ये वाला ब्लॉक है, तो उसने अब क्या करना है, ऑफसेट पे जाएगा. ऑफसेट कहता है 20 या 15 या वट एवर 5. तो इसको पता है कि अब गौर करें, ये सारी कहानी अभी तक कहाँ हो रही है, टैग स्टोर में. दिस इज नॉट हैपनिंग इन द कैश. नाउ इट गोज इनटू द कैश. सो बाय वर्च्यू ऑफ द टैग स्टोर इट नोज कौन सा सेट, कौन सा ब्लॉक, पहला या दूसरा. और ऑफसेट उसको बताएगा कि उसका 5वां एलिमेंट उठा के प्रोसेसर को देते. ठीक है, डज इट मेक सेंस? एंड बाय जो हमने ऊपर ये देखा है कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था इन दिस क्वेश्चन, कि अगर आपको इस तरह का सवाल आता है तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट टू बी एबल टू प्रोसीड विद दिस होल पिक्चर. ठीक है, तो लेट मी जस्ट सी इफ आई हैड दिस एनिमेशन समवेयर. हाँ जी, चलेंगे. देखो ये बिल्कुल, ये जो मैंने पूरी कहानी बताई है, ये यहाँ पे मैं दोबारा से कर लेता हूँ. ये हमारा डायरेक्ट मैप है. तो हमारा एक सिस्टम है डायरेक्ट मैप. डायरेक्ट मैप बेसिकली, दूसरा नाम मैंने क्या कहा था कि डायरेक्ट मैप को क्या कह सकते हैं, वन वे सेट एसोसिएटिव. इसका मतलब ये है कि हर एक, ठीक है, तो ये मेरा टैग. ठीक, तो फर्ज करें कि मेरे पास एक डेटा आया इस शक्ल में. उसने कहा कि यहाँ ये जो सेट है वो इधर पॉइंट कर रहा है इन द टैग स्टोर. ठीक है, और टैग स्टोर के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, तो इस जगह पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो इससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही. ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यूज मैच कर रही हैं तो इसका मतलब है कि ये वाला डेटा जो है वो उसी ब्लॉक का है, और अगर वो मैच नहीं कर रही तो नहीं है. ठीक है, तो मेरा ख्याल है, आई थिंक आई पुट इन, हाँ ये दैट्स अ बेटर एनिमेशन. ठीक है, सो लुक एट दिस थिंग. सो दिस इज द एड्रेस. ठीक है, ये एड्रेस है, और सो दिस इज द एड्रेस, और मैंने इसको ब्रेक डाउन कर लिया है इनटू टैग सेट ऑफसेट. ठीक है, एक्चुअली एड्रेस क्या है, 0000111000, पहली ट्रांजेक्शन का एड्रेस है. तो आप गौर करेंगे जब पहली ट्रांजेक्शन आई तो गोइंग बैक रादर, सो आई होप दिस एनिमेशन है. तो टैग स्टोर खाली था. जब पहली ट्रांजेक्शन आई तो वी नीड द सेम टैग एंड द सेम सेट. तो आप गौर करें कि मैंने कहा था सेट हम पहले क्यों चाहिए होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट मैप है, वन वे सेट एसोसिएटिव. अगर ये टू वे सेट एसोसिएटिव होता तो इसमें दो एंट्रियां होती. अगर ये 4 वे सेट एसोसिएटिव होता तो इसकी इस सेट की 1 2 3 4 एंट्रियां होती. ठीक है, तो इसने क्या कहा, सबसे पहले वो सेट को देखा उसने, इसकी बुनियाद पर इसको पता लगा कि मैंने इसको देखना, यानी इस सारी को मैंने देखनी थी. मैं सिर्फ कंसंट्रेट करूंगा इधर. बाद में हमारी सारी की सारी जो कॉस्ट होती है ना, स्पीड लेटेंसी, वो टैग स्टोर में एक्सपेंड हो रही है. एंड इमीडिएटली यू कैन सी, बाय द वे, मैं एक्चुअल कॉस्टली काम किया है. मैं बीच में थोड़ा सा इसी को कवर कर रहा हूँ, लेकिन ऑफ टॉपिक तो नहीं करूँगा, लेकिन टेंजेंट है. एक्चुअल मेरी कॉस्ट है टैग कंपैरिजन. एक्चुअल कॉस्ट मेरी है टैग कंपैरिजन. नाउ फर्स्ट करेंगे मेरे सेट ना हो और ये मेरा फुली एसोसिएटिव हो, और इसमें 500 ब्लॉक्स हैं, तो इसका मतलब 500 टैग हैं. तो मैं क्या करूंगा, 500 दफा टैग कंपेयर करूंगा, क्योंकि टैग कंपैरिजन इज अ कॉस्ट व्हिच आई कैन नॉट मिस. अब आप कहेंगे यही कंपैरिजन है, दिस इज नॉट अ कंपैरिजन. अगर आपको डिजिटल डिजाइन का कोई आइडिया हो तो यू कैन एक्चुअली डिजाइन अ सिस्टम इन अ वे where it will automatically, and if somebody is interested I can actually digital, अगर आपको DLD अच्छी लगती थी तो मैं आपको बता सकता हूँ कि you can, so this is not a cost. और अगर ये चीज़ है, इधर से इधर पहुँचना कोई कॉस्ट नहीं है. और मैं बताऊँ क्यों, क्योंकि whenever an address is going to have this set, it is always going to be here. So that's not a cost. I can actually hardwire it. Variable क्या होगा, दो वेरिएबल होंगे, टैग चेंज हो रहा होगा, ऑफसेट चेंज कर रहा होगा. लेकिन मैं ऑफसेट सर्चिंग के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर रहा. मैं ऑफसेट कभी भी कंपेयर नहीं कर रहा. मेरी कंपैरेटर कहाँ चल रहा है, मेरा कंपैरिजन कहाँ हो रहा है, टैग.
अगर मैंने इसको सेट में ना डिवाइड किया हो तो इस केस में मैं 4 कंपैरिजन करूंगा वर्स्ट केस में। अगर ये 4 वे सेट एसोसिएटिव होता तो मैं 16 कंपैरिजन कर रहा होता। और एक्चुअली वी टॉक अबाउट लार्ज सिस्टम्स। सेट की बात ये है कि मैं एक कंपैरिजन कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे कंपेयर किया तो दिस वाज अ मिस बिकॉज देयर वाज नथिंग हियर, ठीक है। सो सेट 1 1 फिर मैंने देखा कि टैग क्या ये 0 0 0 है, नहीं है, तो दिस वाज अ मिस। ऊपर आप देखें, अगली मेरी रिक्वेस्ट आई है फॉर अनदर सेट, ठीक है। तो सेट अब मैं 0 0 में जाके देखूंगा और देखूंगा तो ये दिस विल आल्सो बी अ मिस ऑब्वियसली, ठीक है। अगली मेरी कंपैरिजन आ रही है फॉर 1 1 एंड तो 1 1 मुझे बता रहा है कि तुमने कहाँ आना है एंड द फैक्ट दैट दिस टैग मैचेस दिस टैग constitutes a hit। एक कॉस्ट मेरी वो है, अच्छा देखिए मेरी बात सुनें, अगर मेरी मिस होगी तो वो कॉस्ट है, नो डाउट, लेकिन वो उस सूरत में कॉस्ट है कि जब मेरा मिस होगा। लेकिन जो टैग कंपैरिजन है ना, कि मेरी हमेशा कॉस्ट है, मतलब उसमें वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस हो सकता है। मिसाल के तौर पर द बेस्ट केस सिनेरियो है कि मैं पहला वाला मैच कंपेयर करता हूँ, पहला वाला मैच हो जाता है, और वर्स्ट केस क्या होगा कि मैं सारे के सारे कंपेयर करता हूँ और आखिरी वाला मैच होता है। और उससे भी बुरा केस ये है कि मैं सारे के सारे कंपेयर करता हूँ और कोई भी मैच नहीं होता, ठीक है। बट दिस इज द कॉस्ट। अगला वाला मिस क्यों है अगला वाला? फिर अगला वाला मिस क्यों है? क्या चीज मैच नहीं कर रही? टैग मैच नहीं कर रहा। सो इवन दो इट इज इन द सेम सेट, by the way there are things that you can immediately appreciate। immediately appreciation क्या कर सकते हैं कि अगर ये 2 वे सेट एसोसिएटिव होता तो पहली दफा मिस होता, लेकिन हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और टैग को एकोमोडेट कर सकते थे और हो सकता है नेक्स्ट टाइम हमारी ओवरऑल एवरेज मिस जो है वो रेट कम हो जाए, ठीक है। तो आई होप यू कैन सी दिस। If you will look at the PDFs that I've shared, I've put them, this is not in PowerPoint animation, these are separate slides. So you can actually run it on PDF and look at the animation this way. What time is it right now? ठीक है, समझ आ गई नहीं समझ आ गया? I hope you understand and मेरा ख्याल है कि ये नहीं की तो भी कर दूंगा मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये देख लें, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लें। दिस इज द सेम, दो जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, हसान एंड फैसल, ठीक है। इट्स अगर आपके वैसे नंबर हुए हैं तो उनमें से भी मैं काट लूँगा, तो कितना बुरा लगेगा इस बात पे कि आप क्लास में बातें कर रहे हैं व्हाइल यू नो वेरी वेल दैट दिस इज, मैं ऑलमोस्ट किसी बात को माइंड नहीं करता लेकिन इस बात को माइंड करता हूँ, ठीक है। एंड यू शुड नो ऑफ ऑल पीपल। अब एक मैं आपको सिर्फ छोटी सी एक मिसाल, आई जस्ट लीव यू विद दिस थिंग एंड यू कैन रीड इट एंड वील कम बैक टू, ठीक है। अब बाय द वे विल बी पिकिंग अप सम पेज फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑन, बिकॉज फाउंडेशनल चीज़ें हैं। आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट एवरीबडी हैड ए गुड फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग, ठीक। अब गौर करें कि दिस इज द सेम सीक्वेंस, लेकिन नाउ वी आर यूजिंग 2 वे सेट एसोसिएटिव। तो इसमें आपने गौर क्या करना है कि आई हैव 2 मिसेस 1 हिट, 2 मिसेस 1 हिट, 2 मिसेस। तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल ट्रांजेक्शन है तो ए वास्ट परसेंटेज ऑफ देम आर मिसेस ऑफ टोटल ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये बात क्लियर है? और अगर मैं 2 वे की तरफ जाऊंगा तो गौर करें यहाँ पे दिस ट्रांजेक्शन, दिस वन, दिस इज अ मिस, बट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स इट्स गोइंग टू बी अ हिट इन दैट डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, क्योंकि मुझे रिप्लेसमेंट नहीं करनी पड़ी। और आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको और टाइम नहीं दूंगा, आई पुट दिस स्लाइड अप। आई वुड urge you to A, do your assignment, B, go through these slides in detail. When we will have our session online, please, you're most welcome as always to ask questions, remove any doubts, right? And ठीक है, तो ये प्लीज़ पढ़ के
और समझ लीजिएगा, ठीक है। मतलब आई वाज गोइंग वेरी स्लो एट अ वेरी डिलिबरेट पेस. आई नो दैट सम पीपल आर फाइंडिंग इट हार्ड टू कीप देयर आइज ओपन इन द क्लास, व्हिच आई डू अपोलोजाइज फॉर, बिकॉज मैं 4 बंदों को नहीं पढ़ा सकता, मैंने 40 बंदों को पढ़ाना है अनफॉर्चुनेटली, राइट, या फॉर्चुनेट व्हाटएवर. तो ये आप खुद डिसाइड करेंगे इफ दैट्स अनफॉर्चुनेट और फॉर्चुनेट, ठीक है. लेकिन नाउ दैट वी आर सेटल्ड ऑन द बेसिक्स, तो आई जस्ट वांट टू पिक अप सम पेस, ठीक है. एनी क्वेश्चंस बाय द वे, जनरली स्पीकिंग? नहीं. असाइनमेंट देख लीजिएगा. आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर रीडिंग द बुक एंड रीडिंग दिस थिंग एज वेल, ठीक. एंड आई एम पुटिंग अप द रिकॉर्डिंग, ठीक है. थैंक यू क्लास. कोई सवाल नहीं है? जी हाँ, मैं इसको बंद कर दूँ.